Hi बच्चों, welcome back to your unit number 5 of chapter 6 जो कि है account current. In the earlier lecture, you may say as first part or lecture number 1, there we talked about that where do we use account current, what is the exact meaning and all, and thereafter we talked about that you have got three methods in order to maintain and compute the interest. So the first one is with the help of interest table, the second one is by means of product, and the third one is by means of product of balance. So out of that, the first one was completed, and the second one is something that we already started. And in that, we discussed your illustration number 2. Also, we did your illustration number 3 based on that. All right. Now here we are proceeding further with your illustration number 4. Illustration number 4. And here I take a screenshot and take it to your slide. You just give it a quick reading. So illustration number 4 reaches here on the slide. What does it say? It says from the following, prepare account current as sent by A to B on 30th June. ठीक है, मतलब it is rendered by A and it is rendered to B, है ना. आगे कह रहा है by means of product method. So they have clearly mentioned the method on the top, charging 6% interest per annum, and then they have given a lot of things to us. So here we go and prepare our format of account current. Okay. ठीक है, तो ये center partition, and then first column I'll have for date, thereafter we'll have particulars, after that we can have due date, there will be amount, there will be, rather we can say days, and then amount, and then product. Sure. Same goes here, we have date, we'll have particulars, then due date, next would be days, then amount, and thereafter product. ठीक है. ऑल राइट, तो यहाँ जाके मैंने लिखा अकाउंट, इट्स वेरी लाइट. Okay, so here we write over here account current, ठीक है, to be rendered by, to be rendered by A to B on, what's the date they have given, some 30th June, on 30th June. वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिए इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम. ठीक है, चल आप एक एक जाएंगे और लिखेंगे. पहला आया यहाँ डेट, अगला आपका पर्टिकुलर्स. आफ्टर पर्टिकुलर्स you will be having your due date. They have not given any specifics, so the same date shall be taken. After that, we'll count the number of days. Then you will have your amount, and thereafter we'll have product. Okay. Again, we'll have date, then we'll have particulars. It will be followed by the due date. Thereafter, you will have days, then amount, and finally the last column as product. Okay, check. So here we start. Let me take blue ink, थोड़ा डिस्टिंक्ट विजिबिलिटी रहती है. अरे भाई बहुत छोटा हो रहा है, बहुत बड़ा. अभी क्या हुआ, बहुत बड़ा. चलो 11 ही ठीक. सबसे पहले ईयर,
So we have 2016 with us. So all the four columns of date, I'll write 2016, then 2016, then 2016, and 2016. Okay, okay. चलिए आगे. After that, 1st January, so there is a balance due from B. That means B has to pay. That means A has to receive. B has to pay and A has to receive. So here it comes 1st January. 1st January, to balance brought down. How much is the balance? 600. Due date I'll write 1st itself. And now we have to count the days right from 1st January till 30th June. Now my question from you is, will we take 1st January, yes or no? So the answer is yes. Why we will take it? We will be taking it reason being क्योंकि वो उस डेट को ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, पैसे पहले से ड्यू हैं, मतलब फर्स्ट को भी ड्यू थे इसलिए. तो जनवरी के 31 डेज, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून. तो कर लीजिए आप कैलकुलेट. 60 दिन वो 93 ये और 28 आ रहा है 181 डेज. 181 डेज इंटू 600, तो ये कितना हुआ? 108,600. सो द फर्स्ट थिंग इज डन विथ. 11 जनवरी आया अगला, टू सेल्स. ओके, और ड्यू डेट वही ले लेंगे, 11 जन है. कितना है? 520. 520. अब काउंट कर ले हम. 31 डेज जनवरी के हैं, 11 दिन वैसे ही जा चुके, तो जनवरी के 20 दिन. जैन के बाद फरवरी के 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31 और जून 30. तो कितने हो रहा है? 170 डेज हो रहा है. 170. ओके, उसके बाद ये हो गया बी रिटर्न्ड गुड्स, तो क्रेडिट में जाएगा 18 जनवरी. बाय सेल्स रिटर्न. बाय सेल्स रिटर्न. बाय सेल्स रिटर्न डेट यहाँ वही आ जाएगी 18 जनवरी. ओके, सो कितना है? 125. 125. लेट्स काउंट द डेज. 31 days in January. Out of 31 days, 18 days already gone. So how many days of January we will take? 13 दिन. जनवरी के बाद आया फरवरी, कितने हैं? 28. मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31 और जून 30. तो 163 days into 125. So product is 20,375. Clear? यहाँ का प्रोडक्ट नहीं लिखा, लेट मी राइट दैट ऑल्सो. 88,400. ठीक है, चल लेट्स पुट अ टिक मार्क. फिर आया फरवरी 11, बी पेड बाय चेक, तो कितना? 400. तो 11 फरवरी चेक से दिया. तो मैं यहाँ बैंक लिख रही हूँ या सामान रही हूँ, पैसे मिल गए होंगे. आगे कुछ तो नहीं कहा कि बाद में कभी क्लियर हुआ? नहीं. तो वही डेट मान लेते हैं, 400 रुपये हैं और 11 फरवरी ही ले लेते हैं. तो फरवरी में 28 दिनों में से 11 दिन गए, तो 17 दिन फरवरी, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30. तो 139 डेज इंटू 400, तो 55,600. उसके बाद बी एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय ए, मतलब ए के पास बिल रिसीवेबल आया और 1 महीने का है वो 14 फरवरी को. तो यहाँ लिखा हमने 14 फरवरी. फिर लिखा बाय बिल रिसीवेबल. बाय बिल रिसीवेबल के बाद 1 महीने का है, तो 14 फरवरी से 14 मार्च, 14, 15, 16, 17. सो दैट विल बी 17 मार्च. ठीक है. अमाउंट कितना था? 300 रुपये. 300. तो काउंटिंग कहाँ से की जाती है? फ्रॉम ड्यू डेट, दैट मीन्स फ्रॉम 17 मार्च. तो 31 डेज में से 17 दिन गए, तो मार्च के 14 दिन, अप्रैल 30, मई 31 एंड जून 30. सो दैट मेक्स 105 दिन. 105 डेज इंटू 300.
So 31,500 will be the product. ठीक है, चल उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है गुड सोल्ड टू बी 615 29 अप्रैल टू सेल्स, डेट यहाँ 29 अप्रैल ही ले लेंगे और 615 29 अप्रैल मतलब अप्रैल का एक दिन लिया जाएगा, मई 31 और जून 30, कितने हुए 62 डेज, तो 62 इंटू 615, तो दैट इज़ 38,130। अगला रिसीव कैश फ्रॉम बी 700 15 को, तो 15 में 700 रुपये मिले बाय कैश, ड्यू डेट वही ले लेंगे। अब 15 मई से काउंट करें तो 31 डेज़ मई के, जिसमें से 15 दिन गए तो 16 दिन मई के बचे और 30 दिन जून के, तो 46 डेज, सो 46 इंटू 700, so that is 32,200. Okay, now what will we do? We'll do balance of product column first of all. So let me total left side का product column, so that's making 2,35,130. दूसरे साइड का देखें 20,375, देन 55,600, देन 31,500, देन 32,200, so that is 1,39,675. So that means balance will come this side. We write the last date by balance of product and we will calculate the difference, which is how much 95,455. ओके, तो ये कहाँ जाएगा, दिस विल गो ऑन द डेबिट साइड 30 जून, और यहाँ आएगा टू इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट होगा 95,455 इंटू हाउ मच रेट दिस एट 6%, 6% into 1/365. You should be clear with the logic that why these things have come. I have explained it to you. Into 6%, so that's coming 15.69. check करिए 15. इन्होंने यहाँ 366 डेज अब किस खुशी में लिए हैं, लेट मी जस्ट चेक ऑल द थिंग्स वंस, कहीं कोई चीज़ एक आध ऊपर नीचे तो नहीं है वैल्यू। हाँ जी साहब, एक्चुअली द पॉइंट इज़ कि 2016 वो लीप ईयर करके उन्होंने हर जगह एक एक दिन ज़्यादा लिया हुआ है, तो अब हमें तो नहीं पता भाई कि लीप ईयर है कि क्या नहीं, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, आप तो यही सॉल्व कर दीजिए और उधर नीचे लिख दीजिएगा क्वेश्चन में कहीं लीप ईयर का कहा नहीं, तो लाइक दैट्स कम्प्लीटली ओके। और आप बैठे बैठे कोई को साल दें तो यू कैन नॉट सिट एंड फाइंड इट आउट, तो यू कैन राइट, और अगर तुम्हें याद रहता हो कि कौन सा लीप ईयर है तो दैट इज़ गुड, तो नीचे आप नोट डाल सकते हैं। लेट्स अज्यूम हर क्वेश्चन में वैसे वो लिखते हैं 365 डेज, है नहीं लिखा, तो अज्यूम ईयर हैड 365 डेज, ख़त्म बात, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा उसके हिसाब से, और ये आ जाएगा बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन 30 जून। ओके, तो 600 प्लस 520 प्लस 615 प्लस 15.69 माइनस 125 माइनस 400 माइनस 1000, तो 225.69 225.69। ऑल राइट,
चलिए, इलास्ट्रेशन 4 हमारा यहाँ हुआ समाप्त। अब बढ़ें आगे। आगे आप जाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, मैं जब तक यहाँ स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, आप अपना फॉर्मेट बना लें या क्वेश्चन को रीड कर लें ताकि आप मुझसे थोड़ा सा आगे चले जाएं। तो ये हो गया स्क्रीनशॉट रेडी। नाउ इट रीचेस हियर ऑन द स्क्रीन। जी सर, अब क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अकाउंट करंट एज सेंट बाय मिस्टर राम टू मिस्टर शिवा as on 31st October by means of product method, charging interest at the rate 5%, and then they have given a few points and we are asked to prepare it. So let's go and prepare. And what I think is, because I know your caliber, you must be finding it quite easy. Though the topic is new for you, but it is something very easily doable. And the best thing about it is कि कम मेहनत है पर एग्ज़ाम में आने का चांस कम नहीं है, हाई चांस रहता है। मतलब ये मानो एवरेज ड्यू डेट जो कि वापस से एक सिंपल टॉपिक है और अकाउंट करंट, इनमें से एक आध टॉपिक, दो में से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है 4 से 5 नंबर तक का, उससे कम का नहीं, इतना तो आता ही है। मेरी जगह कम हो जाएगी, यहाँ एडजस्टमेंट कर देती हूँ ऐसा। तो व्हाट्स बैड, इट्स गुड। अब तुमने मेरे साथ एक बार ये पूरे क्वेश्चंस कर लिए लेक्चर देखने के टाइम में, तो अब मैं आपको ये बताऊं कि एक क्वेश्चन जस्ट वन आउट ऑफ सो मेनी, मैं हेडिंग वाइज तो करवाती हूँ तुमको, पहले मेथड का एक, दूसरे का एक और तीसरे का एक, तीनों के एक क्वेश्चन करते हो तो हार्डली इट्स गोइंग टू टेक मैक्सिमम 25 to 30 मिनट्स, बस उतना ही लगेगा तुम्हें रिवाइज़ करते समय। मॉक टेस्ट के लिए रिवाइज़ करो तब, या एग्जाम के लिए रिवाइज़ करो, हार्डली आधे घंटे के अंदर चैप्टर रिवाइज है और आधे घंटे में एवरेज ड्यू डेट, तो 1 घंटे में रिविजन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बता रही हूँ मैं, अगर लिख के करता है कोई और ओरल करता है कैलकुलेटर पे टिक टिक करके तो फिर और ही जल्दी हो जाएगा 15-15 मिनट में। और पूरा बैठ के तुम्हें खुद से करना है नहीं वापस से, क्योंकि मेरे साथ एक बार कर लिया तो आई थिंक हो जाएगा। अकाउंट करंट, टू बी rendered मतलब given by Ram to Shiva, Mr. Ram to Mr. Shiva। कब दे रहा है? ऑन 31st October, ऑन 31st October, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। interest at the rate 5% per annum. Okay. Date, particulars, due date, days, amount, product. Okay. Next, date, particulars, due date, days,
amount or product. Clear? Okay. So here I change the ink and solve it, and I would want that you do the things at a very high speed. चलिए, साल 2016, 2016। ठीक, देखो अब जब भी 2016 आएगा तो अभी इन लोग ने फेबररी की तो कोई डेट दी नहीं, तो दिमाग में प्राइस आएगा। चलो आगे, व्हाट दे से बैलेंस ड्यू फ्रॉम शिवा लेना है ना। तो 1 जुलाई विल कम ओवर हियर। 1 जुलाई टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब ड्यू डेट फर्स्ट 7 ही ले लो। अब डेज तो 1 जुलाई से मतलब फर्स्ट विल बी टेकन 31 डेज जुलाई, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31। सो दैट्स मेकिंग 123 डेज। अमाउंट है 750, तो इनटू 750 करेंगे एंड दैट इज़ 92,250। पहला डन। सोल्ड गुड्स 15 अगस्त को, 15 अगस्त। तो 2 सेल्स यहाँ 15 अगस्त की आएगी। ये कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है कि उसके कंसेप्ट को हमें यहाँ लगाना हो। 15 अगस्त के बाद अगस्त में 31 डेज़, 15 दिन गए। अगस्त के बाद सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 डेज़। 77 days are coming into 1250, so that's 96,250. Then goods returned by Siva 20 August, 20 August by sales return, by sales return। अब वैल्यू कितनी है 200, तो डेट यही ले लेंगे और 200 रुपये का सामान। ठीक है, चलो अब 20 अगस्त मतलब 31 माइनस 20, तो अगस्त के 11 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31, दैट्स मेकिंग 72 डेज। 14,400। ठीक है, ये भी हो गया। सिवा पेड बाय चेक, तो 22 सितंबर बाय बैंक, और ड्यू डेट भी वहीं लिख लेंगे। और अमाउंट कितना है 800 रुपये। नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन। इन सितंबर वी हैव 30 डेज, तो 22 दिन गए, तो बचे कितने 8। तो 8 के बाद सितंबर गॉन, अक्टूबर 31, सो वी विल टेक 39 डेज। सो दैट्स 39 इंटू 800, 31,200। ओके, दिस इज ऑल्सो डन। नाउ कैश रिसीव्ड 500, 500 कैश रिसीव्ड 15 अक्टूबर को, सो बाय कैश। ड्यू डेट विल बी 15 अक्टूबर itself। लेट्स काउंट। अक्टूबर हैज़ 31, जिसमें से 15 दिन गए, तो अक्टूबर के बचे 16 दिन। बस अक्टूबर के ही बचे, फिर रेंडर तो 31 को ही करना है, तो 16 इंटू 500 कितना हुआ 8,000। अब अगला काम प्रोडक्ट कॉलम का बैलेंस निकालना है, तो 92250 प्लस 96,250 माइनस 14,400 माइनस 31,200 माइनस 8,000। So that's coming how much? 1,34,900 by balance of products और डेट 31 अक्टूबर। ठीक है, 1,34,900, 1,34,900। Now what is to be done? We will come on the debit side, 31st October, and we will calculate the amount of interest which we need to take from that person. So 1,34,900 into, I think the rate was 5%. Yes, it was 5% only, or into 1/,
365. Okay, so let's carry out our calculation and find how much is our interest coming. It is coming 18.48. 18.48. So this much we will charge from them और यहाँ पर आके बैलेंस कर देंगे. 31st October by balance carried down. So 750 plus 1250 makes 2000 plus 18.48 minus 1000 और मतलब 1500 मतलब 518.48. 518.48 is your balance coming. 518.48. Okay, done. Now before we proceed further and start the next method, I would like to bring something important to your knowledge. जैसे कि मैं तुमसे कह रही हूँ एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, मैं तुम्हें दिखाऊँ क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर ये है हमारी ICAI की साइट है ना. अब यहाँ दिए हैं क्वेश्चन पेपर. May 18 का मैं क्वेश्चन पेपर खोलूँ. May 18 was the first attempt of CA फाउंडेशन. ये ऐसे कलरफुल आता है पेपर. इसमें जी सबसे पहले आप ये देखिए, मिस्टर आलोक ओज मिस्टर चिराग 650 ऑन 1 जनवरी. अलग अलग इनने डेट बताई और कह रहा है आलोक पेज होल अमाउंट ऑन दिस, कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट. 5 नंबर का क्वेश्चन था. अब मुझे नहीं लगता कि अकाउंट करंट पूछा होगा क्योंकि एवरेज ड्यू डेट एक बार पूछ ही लिया. फिर भी लेट मी गो डाउन एंड जस्ट गेट इट फॉर यू इफ़ वी फाइंड इट. तो इसमें और तो कुछ नहीं. ठीक है, तो ये बंद करूँगा. अगला हूँ मैं नवंबर 18. अब जैसे कि मैं देखती चल रही हूँ, ये देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अकाउंट करंट सेंट बाय AB टू XY बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड. और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिए. बैलेंस ड्यू फ्रॉम XY, सोल्ड, रिटर्न, पेड बाय चेक, रिसीव. ये 5 नंबर का क्वेश्चन दिया और इसके ऑल्टरनेटिव में उन्होंने क्या दिया, अभी वो आपने पढ़ा नहीं है. नहीं पढ़ लिया ना. ये क्या बोल रहा है, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. तो 5 नंबर का उन्होंने ऑल्टरनेट में ये दे दिया. मतलब आप ये देखिए, या तो दे हैव गिवन क्वेश्चन ऑफ एवरेज ड्यू डेट पिछली बार, और या नहीं तो दे हैव गिवन अकाउंट करंट. तो 5 नंबर तो ये दे रहा है. May 19 देखें, what do they have for us. So and here I am searching. Yes, so here they are saying 2 traders, Yogesh and Yusuf, buy goods from one another. They are giving 1 month credit period. At the end of 3 months, the account rendered are as follows. Goods sold by Yusuf, मतलब sold by Yogesh to Yusuf and Yusuf to Yogesh. Calculate the date upon which the balance should be paid so that no interest is due to Yogesh or Yusuf. मतलब average due date. Inter-party transaction, जो सेकेंड केस हमने करा था. और उसके बाद रॉयल्टी तो अब हट गया है सिलेबस से. और नीचे जाते चलें तो फिर कुछ नहीं मिलता. तो 5 नंबर का मतलब हमको पहले आया ADD, फिर आया अकाउंट करंट, फिर आया ADD. नवंबर 19 देखें क्या है. अब तुम बैठ के तुक्का ये मत लगाना कि तुम्हारे पेपर में क्या रहा है. ये कंसाइनमेंट और सेल रिटर्न बेसिस. ये देखिए, फिर द फॉलोइंग आइटम्स आर ड्यू. X by Y wants to pay on 10 जुलाई, इंटरेस्ट रेट इतना, एवरेज ड्यू डेट निकालिए. अगर
अमाउंट 10th जुलाई को पे होता है, तो बताइए कितना इंटरेस्ट होगा। और ये दिया इन्होंने, पार्टनरशिप है एज अ डेबिट बैलेंस इतना इतना, ये अकाउंट करंट का क्वेश्चन। ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। तो इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं कि ये हर बार 2 में से 1 तो आता ही है और 5 नंबर दे के जाता ही है। तो इधर दोनों ही चैप्टर में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए हमारे, है ना। चलो आगे पहुँचे। फिर हमारा सेकंड मेथड यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब सेकंड मेथड कंप्लीट होने के बाद हम पहुँचे थर्ड मेथड पर, और इसका हम नाम लिखेंगे और फिर इसको हम पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। थर्ड मेथड का नाम मीन्स ऑफ प्रोडक्ट। means by means of product of balance, product of balance। और ये यूज़ होने वाला है किसके रिस्पेक्ट में, मेजरली अगर मैं तुमसे कहूँ तो बैंक में ऐसा होता है, करंट अकाउंट में, कि कभी आपका पॉजिटिव बैलेंस हो जाता है कभी नेगेटिव। इवन पार्टनरशिप में कई बार ऐसा होता है ओवरड्रॉ कर लेता है इंसान, और कई बार उसका डिपॉजिटेड रहता है। तो इन दो के बेस पर इनके क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने लिखवा इसलिए दिया कि वो एक तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, कि देखते से ही क्लिक करेगा ओ दिस इज़ केस नंबर 3 ऐसा। ठीक है, चल ये हमने लिखा। अब इसमें क्या हो रहा है, ईजी है वापस ये मज़ेदार। ठीक है, चल हम आए हमारे मॉड्यूल पे और पढ़ें कि हमारा मॉड्यूल हमसे क्या कहता है। मॉड्यूल हमसे क्या कहता है जी। मॉड्यूल फरमा रहा है दिस इज़ ऑल्सो नोन एज पीरियोडिक बैलेंस मेथड, मतलब हर थोड़े दिन में इसका बैलेंस निकाला जाता है। तो इसका दूसरा नाम आप वहाँ पे भी जाके लिख लीजिए, क्या है इसका अगला नाम, पीरियोडिक, बहुत छोटा हो रहा है, पीरियोडिक बैलेंस मेथड। हर थोड़े दिन में बैंक वाला इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे देता है ना हमको, कि आपसे इतना इंटरेस्ट लेना है या आपको इतना इंटरेस्ट देना है, ऐसा पीरियोडिक बैलेंस मेथड। आगे, इट इज़ यूजुअली अडॉप्टेड इन केस ऑफ बैंक्स where the balance of account is taken out after every transaction. In this case, the number of days, अब ध्यान से, बहुत ध्यान से, number of days written against each transaction are, अब यहाँ डेज कैसे लेने हैं, पहले कैसे डेज ले रहे थे हम, ड्यू डेट से लेके जिस डेट को आप अकाउंट रेंडर कर रहे हो वहाँ तक। हम यहाँ तो अकाउंट रेंडर किसी भी डेट पे किया जा सकता है, जिस दिन प्रिंट आउट निकाल रहे हैं उस दिन तक का। तो इसलिए जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वहाँ से लेके अगले ट्रांजैक्शन तक, एक से दूसरे ट्रांजैक्शन के बीच में उतना लेना रहता है। द नंबर ऑफ डेज रिटन अगेंस्ट ईच ट्रांजैक्शन आर द डेज काउंटेड फ्रॉम इट्स डेट, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और ड्यू डेट टू द डेट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, क्योंकि वो जो बैलेंस है वो उतने ड्यूरेशन तक के लिए चलता रहा। तो एक ट्रांजैक्शन से अगले ट्रांजैक्शन के बीच तक का जो ड्यूरेशन है वो लिया जाता है। इन केस ऑफ द लास्ट ट्रांजैक्शन द नंबर ऑफ डेज इज काउंटेड टू द क्लोज ऑफ द पीरियड। इन द लास्ट ट्रांजैक्शन द नंबर ऑफ डेज इज काउंटेड टू द क्लोज ऑफ द पीरियड। ये कैसा प्रश्न, brush is what I chose. This brush was so dirty. Shall let me choose pen only. Let's come back. Okay. So here what are they saying? Each amount is multiplied with the number of days. If the amount represents a debit balance, the product is entered in. अब दो बनेंगे देखिए. If the amount represents debit balance, the product is entered in the debit product column.
and if it represents a credit balance, तो the product is written in credit product column. तो अभी तक हमारे प्रोडक्ट के कॉलम वैसे अभी भी दो होते थे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, यहाँ पे भी दो होंगे, बट इनके नाम क्या होने वाले हैं, डेबिट प्रोडक्ट कॉलम और क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम. द डेबिट एंड क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम आर देन टोटल्ड अप. फाइनली उनको टोटल करते हैं, बैलेंस नहीं करने का कहा है. द डेबिट एंड क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम आर टोटल्ड अप. इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ईच टोटल. कई बार ऐसा होता है कि आपके खाते में पैसे अगर होंगे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, और अगर आपने ओवरड्रॉ करा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है. ऐसे नहीं होता कॉल्स इन एरियर्स कॉल्स इन एडवांस में. ऐसे ही बैंक में होता है कि आपका डिपॉजिट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, और विड्रॉ है तो अलग है, जैसे लोन है अलग और सेविंग है तो अलग, तो दैट काइंड ऑफ. तो वो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो डेबिट का प्रोडक्ट है उसका टोटल अलग, क्रेडिट का जो है उसका टोटल आप अलग करेंगे, और जिन पे जो इंडिविजुअल रेट्स हैं वो आप अप्लाई कर देंगे. तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ईच ऑफ द टोटल एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड द नेट इंटरेस्ट इज असर्टेन, कि कितना इंटरेस्ट लेना है कितना इंटरेस्ट देना है, तो नेट कर देंगे. इफ़ नेट इंटरेस्ट इज पेएबल टू द कस्टमर, तो फिर पैसे मिल जाएंगे, बाय इंटरेस्ट आ जाएगा, बैंक अपनी लाइबिलिटी बढ़ा लेगा. एंड इफ़ इट इज़ ड्यू टू द कस्टमर, तो फिर ले लिया जाएगा, टू इंटरेस्ट करके आ जाएगा. तो एक छोटे से पैराग्राफ में बहुत कुछ उन्होंने आपके लिए कह दिया. अब मैं चाहूँगी कि पहले आप कॉपी में जाइए, हेडिंग तो आप डाल ही चुके हैं, मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स नोट करवा दूँ. लेट्स गो एंड राइट. मॉड्यूल में मार्क करके छोड़ने का नहीं, क्योंकि हमारी जो कॉपी है उसमें हमने हर चैप्टर की हर चीज़ लिखी है. तो दैट शुड बी द फाइनल थिंग जिसको हम देखें और एग्जाम में पहुंच जाएं. लिखिए जाके पहला पॉइंट. नाम तो दूसरा लिख ही दिया, व्हाट इज़ द अदर नेम, पीरियोडिक बैलेंस मेथड. अब जाके लिखिए आप, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेज, प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट के लिए डे और अमाउंट लगता है, अमाउंट दिया होगा, डेज कैसे निकालना है. फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज, for the calculation of number of days, days are counted from, days are counted, days are counted from the date of transaction, date of transaction up to next transaction. Days are counted from the date of transaction till the next या फिर following transaction. उसी में लिख दो if, next point करके, it is the last transaction, if it is the last transaction फिर क्या करेंगे, तो from the date of transaction till the date of ending of period. जिस दिन भी आप फाइनली बैलेंस निकाल रहे हैं. चलिए अगली बात आती है, अमाउंट रिप्रेजेंटेड जो है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट जाके, if the amount represents a, if the amount represents a, if the amount represents a debit balance, so on multiplying with days, product will be written in, product will be written in debit product column. Next लिख दो however
However, if the amount represents a credit balance, so the product will be written in credit product column. Credit product column. ठीक है, ये नोट हुआ आपका। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अगला, नेक्स्ट, फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट both debit and credit product columns are total and interest is calculated for each, और एक के लिए इंटरेस्ट निकाला जाता है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर ईच, मतलब इंटरेस्ट चार्ज कितना करना है वो कहाँ से निकलेगा। अगर डेबिट बैलेंस है तो पता है आपको, डेबिट बैलेंस का अगर अकाउंट है तो नेगेटिव होता है, मतलब तो चार्ज कितना करना है, और इंटरेस्ट अलाउ कितना होना है, क्रेडिट निकल रहा है तो। और इसको क्या कर लेना है, इसको कर लेना है नेट ऑफ, नेट आउट, तो समझ में आ जाएगा लेना है या देना है। पूरा ही मार्क करना पड़ेगा। इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट अलाउड, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, नेट आउट करना होगा। ओके डन। अभी क्वेश्चन करेंगे तो इट विल बिकम इवन बेटर। डेज के लिए क्या बोला मैंने आपको, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन अप टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, लास्ट है तो टिल एंडिंग ऑफ द पीरियड। चलिए अब करके देखें इसको, हाउ इट इज़ टू बी टेकन अप। मेजॉरिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया है तुम्हारा। ये थर्ड वाला मेथड पढ़े और बस थोड़ा बहुत फिर कुछ बचा। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। कैसे करते हैं लोग, अजीब लिख देते हैं अज्यूम 365 डेज, साल 2016 है, ठीक है कोई नहीं। इसलिए तुम भी जब सॉल्व करो याद रह जाए 16 तो लिख देना, और अगर उन्हें अजम्पशन दिया हुआ हो तो फिर वो लिख देना, और कुछ नहीं दिया हो तो लिख देना अपना अज्यूम 365 डेज। और हर बार 16 ही 16 लिखते हैं लोग, अब भूलूंगी ही नहीं मैं इसको। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 6। Illustration number 6 is where we are reaching. Okay. Illustration 6 पढ़े। कह रहे हैं on 2 जनवरी 2016 विनोद ओपन अ करंट अकाउंट, बड़ा अच्छा किया, विद इलाहाबाद बैंक एंड डिपॉजिटेड 30,000। तो 30,000 ने डिपॉजिट करे। अभी सॉल्व नहीं करना है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें हम क्वेश्चन की। 30,000 डिपॉजिट करे। ओके फिर कह रहे हैं ही फर्दर डिपॉजिट्स द फॉलोइंग अमाउंट। डेट्स चेक करेंगे, ट्रैक रखेंगे। अब मैं अगर आपसे ऐसा कहूँ, सॉल्व नहीं कर रहा है अभी, हम सिर्फ एक लॉजिक समझ रहे हैं। 2 जनवरी से 15 जनवरी तक खाते में कितने रुपए थे, 30,000, तो इंटरेस्ट 30,000 रुपये मिलना चाहिए, है ना। फिर मैं बोलूँ तुमसे 15 जनवरी 12,000 और जमा हो गए। अगला ट्रांजैक्शन कब है, 15 फरवरी नीचे, तो 15 जनवरी से 15 फरवरी तक की बात करें तो 30 पहले थे और 12 और डिपॉजिट हुए तो कितने रहे, 42,000। इस ड्यूरेशन के लिए कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 42,000 पे। फिर 15 फरवरी
से अगली डेट देखो क्या आ रही है, 12 मार्च। 12 मार्च, 15 फरवरी को इन्हें 26,000 निकाल लिए, तो 26 निकाले तो बचे कितने होंगे, 16। 42 थे, 26 निकाल लिए तो 16 बचे। इस ड्यूरेशन में 16,000 रुपये इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगली डेट क्या आई, 12 मार्च। 12 मार्च को 8,000 फिर जमा किए, और 12 से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 10 अप्रैल है, तो 12 मार्च से 10 अप्रैल तक इतना कितना जमा किया अभी, 8, तो कितना हो गया, 24,000। 24,000 जमा रहा है ना। अब बात करें हम 10 अप्रैल से। 10 अप्रैल के बाद अगला ट्रांजैक्शन 10 मई, और उसमें क्या हुआ था, नहीं 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 नहीं, 10 अप्रैल से 10 मई, तो ये क्या हुआ, 30,000 रुपये 10 अप्रैल को निकाल लिए थे, तो यहाँ हो गया -6,000। तो इस ड्यूरेशन के लिए इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, देना पड़ेगा। फिर 10 में आया, तब उन्होंने 16,000 जमा कर दिए, तो बैलेंस कितना हो गया, 10,000। और 10,000 कब तक कंटिन्यू हुआ, 15 जून तक। कुछ तुम्हें समझ आ रहा है, हाँ या ना। 15 जून तक 10,000 चला। अब 15 जून पर 14,000 और निकाल लिए, तो 14 और निकाल लिए तो -4 हो गए। और कब का हमें बैलेंस नीचे पढ़ो, 30 जून को बना रहे हैं, तो लास्ट डेट 30 जून तक 4,000 नेगेटिव ही रहा। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड, यहाँ जितना ड्यूरेशन है उसमें इंटरेस्ट मिलेगा इतने दिनों के लिए, 30,000 रुपये। यहाँ अमाउंट बढ़ गया तो बढ़े हुए अमाउंट पे मिलेगा इतने दिनों के लिए। यहाँ अमाउंट कम हो गया तो कम अमाउंट पे मिलेगा। यहाँ पे अमाउंट फिर बढ़ गया थोड़ा तो इस पर मिलेगा। यहाँ नेगेटिव हो गया तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यहाँ पॉजिटिव हो गया तो बैंक इंटरेस्ट देगा। या नेगेटिव हो गया तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये सब ऐसा कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसमें लगने वाला है ये पर्टिकुलर मेथड। कुछ थोड़ा समझ में आ गई बात? ओके मैम, चलिए मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और अगली स्लाइड पे पहुँच जाऊँ। नीचे कहाँ है वो पढ़िए। शो विनोद्स अकाउंट इन द लेजर ऑफ इलाहाबाद बैंक, इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट 10% ऑन डेबिट बैलेंस। नेगेटिव कहीं हो तो 5% लेना है, और क्रेडिट बैलेंस है तो 2% देना है। ऐसा द अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड ऑन 30 जून, कैलकुलेशन में बी डन, मे बी मेड करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी, राउंड ऑफ अप कर सकते हैं। अज्यूम 1 ईयर हैज़ 365 दिन। ठीक है, अब बनाएंगे आप फॉर्मेट। इसके फॉर्मेट की शक्ल थोड़ी पासबुक से मिलती जुलती होने वाली है। डेट होगा, एक ही पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, फिर एक डेबिट कॉलम होगा, एक क्रेडिट। डेबिट इसलिए जब आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो, और क्रेडिट जब आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, और एक कॉलम आ जाएगा आपका बैलेंस का। ठीक है, और उसके बाद डेज ऑफ प्रोडक्ट। चलिए, तो ये क्योंकि बैंक में यूज़ हो रहा होता है मेजरली, तो इसकी शक्ल पासबुक से मिलती जुलती हो जाती है। ये आया यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, जमा किया तो क्रेडिट, विड्रॉ किया तो डेबिट, फिर आ जाएगा यहाँ बैलेंस। अब वो डेबिट क्रेडिट वाले अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं अपन पॉजिटिव नेगेटिव कर देंगे। फिर आ जाएंगे डेज कि वो बैलेंस कितने दिन तक चला, और फिर आ जाएगा एक डेबिट का प्रोडक्ट और एक क्रेडिट का प्रोडक्ट। अकाउंट करंट, लिख सकते हैं आप पूरा, टू बी रेंडर्ड बाय, कौन है ये, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक जिसको देंगे ग्राहक, कस्टमर। नाम दिया है क्या कस्टमर का, विनोद, टू विनोद। डेट भी लिख लीजिए, अब मेरे पास जगह नहीं है, ऑन वॉन कर दीजिएगा। क्या डेट है, 30 जून, 30 जून, और ब्रैकेट में लिख देना डेबिट बैलेंस पे इतना इंटरेस्ट और क्रेडिट पे इतना। चलिए, अब पहुँचे हम यहाँ, लिखा मैंने कॉलम पहला डेट,
अगला कॉलम मैंने लिखा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद मैंने लिखा यहाँ डेबिट और यहाँ लिखा क्रेडिट। अब यहाँ डेबिट मतलब माइनस और क्रेडिट मतलब प्लस। फिर आ जाएगा बैलेंस। अब वो बैलेंस कितने दिन तक चल रहा है, तो यहाँ डेज। और फिर आ जाएगा यहाँ डेबिट प्रोडक्ट, नेगेटिव है तो यहाँ, और क्रेडिट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो यहाँ। तैयार है फॉर्मेट क्या? चलिए सर, सबसे पहले कौन सी डेट है? सेकंड को उन्होंने 30,000 जमा किए, तो ईयर कौन सा है? 16 ही है, 16 ही, 2016, 2 जनवरी। जमा किए पैसे बाय कैश, बाय कैश, ठीक है। और कितना? 30,000। तो बैलेंस में आप लिख दीजिए यहाँ 30,000 और ब्रैकेट में लिख दीजिए क्रेडिट बैलेंस चल रहा है। अब अगला ट्रांजैक्शन कब हो रहा है? 15 जनवरी। ये डेट्स आपको थोड़ा ट्रैक रखना पड़ेगा। 15 जनवरी अगला ट्रांजैक्शन है ना। तो मेरा आपसे ये कहना है कि 2 जनवरी से 15 जनवरी तक आप डेज काउंट कर लें तो 13 दिन होते हैं। तो 13 डेज 30,000 का ही बैलेंस रहा। 13 इंटू 30 करिए, 13 3 ज़ा 39, तो क्रेडिट प्रोडक्ट में ये इधर आ जाएगा। इस ड्यूरेशन पे हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 13 दिन का। अगला डिपॉजिट करें हैं 12,000, तो यहाँ आएगा बाय कैश, बाय कैश 12,000 और आ गए। अब उनका बैलेंस बढ़कर कितना हो गया? 42,000 क्रेडिट बैलेंस। अब डेज काउंट करिए, 15 को 42 हुआ और ये कब तक रहा? ये रहा होगा 15 फरवरी तक, क्योंकि 15 फरवरी उन्हें पैसा निकाला। तो कर लीजिए आप 15 जनवरी, मतलब जनवरी में 31 डेज माइनस 15, तो 16 दिन जनवरी के और 15 दिन फरवरी के, कितने दिन हुए? 31 डेज 42,000 का बैलेंस चला। तो 31 इंटू 42,000 करिए, दैट्स कमिंग 13,02,000. So this is done. Coming to next 15 फरवरी, 15 फरवरी पैसे निकाल लिए मैंने, कर दीजिए टू कैश। कितना निकाला? 26,000, 26,000। अब 42,000 था और 26,000 निकाल लिया, बचा कितना? 16, है ना, बचा है। इसीलिए अभी भी बैलेंस क्या चल रहा है? क्रेडिट बैलेंस ही। अब ये समझिए 15 फरवरी पैसा निकाला था तो बचे 16, और कब तक ये ऐसे ही चलता रहा? 12 मार्च तक। तो 28 डेज़ ही लेना है, 365 डेज़ का है इन्होंने। तो 28 दिन फरवरी में से 15 दिन गए, तो 13 दिन यही बैलेंस चला, और मार्च के 12 दिन, मतलब कितने हुए? 25 दिन, 25 डेज़ 16,000 का बैलेंस चल रहा है। तो मल्टीप्लाई करा और यहाँ लिखा 4 लाख, ठीक है। चलिए आगे। अब अगला ट्रांजैक्शन कब आया? 12 मार्च, 12 मार्च बाय कैश 8,000 रुपये आ गए। कब आए? 12 मार्च को आए हैं, तो 12 मार्च को बैलेंस कितना हो गया? 24,000। अब ये 12 मार्च से 24,000 जो हुआ वो कब तक इतना ही रहा? वो रहा 10 अप्रैल तक। तो मार्च के 31 दिन में से 12 दिन तो गए, तो इसका मतलब 19 दिन मार्च में, 12 मार्च को हुआ ना, तो 19 दिन मार्च में 24,000 रहा और 10 दिन अप्रैल के, मतलब 29 डेज़, 29 डेज़ 24,000 का बैलेंस चला। तो यहाँ इसका प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा 6,96,000, 6,96,000। ओके, ये क्या हुआ? 12 मार्च। अब 10 अप्रैल को देखिए क्या करा उन्होंने। 10 अप्रैल को 30,000 निकाले, तो यहाँ मैंने लिखा 10 अप्रैल टू कैश 30,000 निकाले। अब 30 निकाले तो यहाँ हुआ क्या? ये हो गया नेगेटिव, डेबिट बैलेंस हो गया इसका। अब कब हुआ ऐसा? 10 अप्रैल को नेगेटिव हुआ,
और ये नेगेटिव कंटिन्यू हुआ कब तक, 10 मई तक। तो मतलब 10 अप्रैल से 10 मई नेगेटिव था, तो वो लोग उसके लिए चार्ज करने वाले हैं। तो हम डेज काउंट करें, 20 दिन अप्रैल, मतलब 10 के बाद से 30 तक 20 दिन अप्रैल नेगेटिव रहा, और मई के 10 दिन मतलब 30 दिन, 30 डेज नेगेटिव रहा, तो डेबिट प्रोडक्ट में डलेगा। ठीक है, चल अब ये क्या था, 10 अप्रैल को पैसे निकले थे, अब 10 मई को पैसे वापस डल गए। तो यहाँ लिखा मैंने 10 मई, 10 मई बाय कैश कितना डाला, 16,000। जैसे ही 16,000 डाला तो जो नेगेटिव 6 था, अब वो कितना बन जाएगा, पॉजिटिव 10 क्रेडिट बैलेंस। अब ये पैसे कब डाले उन्होंने, 10 में। तो 10 मई से लेकर अगला ट्रांजैक्शन कब हो रहा है, 15 जून। तो 10 मई से 15 जून तक खाते में 10,000 का पॉजिटिव बैलेंस है। तो मई के 21 दिन बचे और जून के 15 दिन, तो 36 डेज, 36 डेज यही 10,000 का बैलेंस मेंटेन रहा, और वो भी पॉजिटिव। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। फिर आ गई 15 जून, 15 जून, 15 जून तो क्या करा, 15 जून को ऐसे निकाल लिए टू कैश, और कितना निकाला, 14,000। अब साहब खाते में थे 10, निकाले 14, तो 4 एक्स्ट्रा निकल गए, तो वापस नेगेटिव हो गया। और ये निकला कब, 15 जून। अब 15 जून को नेगेटिव हो चुका था, और हम अकाउंट कब बना रहे हैं, अकाउंट कर रहे हैं 30 जून। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी ड्यूरेशन नेगेटिव रहा, मतलब 15 दिन। तो प्रोडक्ट डेबिट वाले में आएगा। अब इन दो कॉलम्स का टोटल करिए, 390 so that's coming 31,48,000 यहाँ का, और वहाँ 2,40,000। ठीक है, अब दोनों पे हमें इंटरेस्ट निकालना है। इतना काम हो गया, एक बार मैं कैलकुलेशन मैच कर लूँ, 3148 और 244 कैसे हो रहा है, 16 दिन हो रहा है। पंद्रह जून को पैसे निकल गए थे, तो दे इंटेंड टू से कि 15 जून को पैसे निकल गए, तो 15 जून को भी नेगेटिव था और 30 तक कंटिन्यू हुआ, तो 16 दिन। चलिए अब नीचे जाइए और इंटरेस्ट निकालिए। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट प्रोडक्ट कितना था वो, 13 लाख, 13 ही है ना, नहीं 31,48,000 इनटू क्रेडिट पे 2% मिलेगा, और 160 वो 365, 1/365, तो कितना आ रहा है, 172.49 का इंटरेस्ट मिलेगा। और अब कैलकुलेट कर लीजिए जो इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन डेबिट प्रोडक्ट $2,44,000 पर 5% इंटू 1/365, तो 2,44,000 का 5% by 365, दैट्स कमिंग 33.42। तो 33.42 जो है, 33.42 वो क्या होना है, देना है, जबकि 172.49 लेना है।
तो नेट में 33.42 और ये नेट में कितना लेना है, 139.07 मिलेगा, 139.07 मिलेगा। तो उन्होंने कहा था क्वेश्चन में आप इसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा फर्दर, तो मतलब 140 मान लीजिए आप, है ना। 139.07 मतलब 140। अब ये बैंक में वो लोग क्या करते हैं, अपने आप डाल देते हैं। तो खाते में जब डाल देते हैं तो हमारे को डाल देंगे कौन सी डेट को, 30 को, 30 जून। यहाँ आ जाएगा बाय इंटरेस्ट, और वो हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हमारा बैलेंस बढ़ेगा। तो यहाँ 140 तो बैलेंस कितना हो जाएगा, वो नेगेटिव 4000 था, 140 पॉजिटिव हो गया, तो 3860 का डेबिट बैलेंस। तो आपको कैलकुलेशन समझ आ गया कि वो आपको 140 का इंटरेस्ट देंगे तो आपके खाते का बैलेंस बढ़ेगा, इसके क्रेडिट में लिखा, पहले से डेबिट बैलेंस था तो नेट हो गया, तो 3860 आ गया बैलेंस। आर यू क्लियर विद दिस? आई थिंक येस। तो ये आपका हो गया होगा। अब व्हाट यू कैन डू इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 आप एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है, और यू विल सी हाउ मच यू आर एबल टू डू। इफ़ यू फाइंड टाइम, इफ़ यू डोंट गेट टाइम इट्स ओके। तो एज अ होमवर्क ही मैं तुम्हें दे रही हूँ, कर लो तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करवाऊँगी और चैप्टर जो भी थोड़ा बहुत हमारा बचा है इसको हम क्लोज कर देंगे। ओके, ठीक है, चलिए। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।